Okay, sure. We are live on YouTube. Hello, everyone. A very good morning to all of you. On behalf of R.S. Munle Dharampet Arts and Commerce College, Mahila Mahavidyalay, Rajkumar Keval Ramani Kanya Mahavidyalay, and Board of Studies in English, I welcome you all to this BA Compulsory English online course, which is prescribed for Semester 1 RTM Nagpur University. And friends, today we have with us Dr.Renu Dalela, an expert in English from RTM Nagpur University. Students, every day we have been receiving an overwhelming response, and we have already completed the first 2 units, and today we are beginning with the 3rd unit, which is the poetry section, and Dr. Renu Dalela would be dealing with the poem Daffodils, written by William Wordsworth. It is my honor and privilege to welcome you, ma'am, and to give a brief introduction of yours. Dr. Renu Dalela is an associate professor, head Department of English at Principal Arun Rao Kalode Mahavidyalaya, Nagpur. She has done MA in English Literature, MPhil and PhD. She has a teaching experience of 28 years at undergraduate level. She has completed minor research project on feminism in the novels of Manju Kapoor, and she has edited the book Popular Short Stories, which has been published by S. Chand, and this is prescribed for BA Part 2 examination and Semester 4 English Literature Study of Prose. She has a rich administrative experience also. She has been appointed as Chief Supervisor, University Examination of RTM Nagpur University. She has been appointed as Subject Expert and Vice Chancellor Nominee in Interview Committee and Local Enquiry Committee. She was the NAC Coordinator in 2012 and IQAC Coordinator in 2019. She has edited number of books. Yes, and there are 7, she has 7 articles published in edited books, then 15 articles and research papers published in research journals, 16 articles published in international and national conferences. Then she is the member of selection committees for college teachers, member of LEC committees formed by university, member of placement committee, co-opted member, Faculty of Arts English, and she has been the editor and co-editor of Senecal, a peer-reviewed annual journal of English, Delta, National Journal of Multidisciplinary Research with ISSN, and Stress Management and Sports Psychology in Physical Education. This is also a journal. And so we are fortunate, students, to have such a distinguished personality amidst us here today. So over to Dr. Renu Dalela. उसमें नहीं लगाया म्यूट कर Till madam is ready, I'll give you a few instructions. सारे students को एक 2-3 चीजें बताना जरूरी है.
आप लोगों को फीडबैक फॉर्म हर लेसन के बाद आपके ग्रुप में दिया जाता है। आपको फीडबैक फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको एक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक छोटा सा क्विज आपको दिया जाता है, उसे भी आपको भरना है। और क्विज सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा, आपको कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट योर डिफिकल्टीज वुड बी सॉल्व्ड. ओके, so over to Dalela ma'am. Thank you, Manju. A very good morning to all of you. I hope I am audible. Yes, yes. Hello. Yes ma'am, you are audible. Okay. At the outset, let me first congratulate all the three colleges, Dharampet Arts and Science College, Dharampet Arts and Commerce College, Nagpur, Mahila Mahavidyalay, Nagpur, and Rajkumar Keval Ramani Girls College, Nagpur, for organizing BA Compulsory English online course for the benefit of our students in collaboration with Board of Studies in English, RTM, Nagpur University, Nagpur. I would also like to welcome all students who have joined here. A hearty welcome to everyone. Should I share my? Hello? Yes, yes, you can. Should I Yes ma'am, you can. share my screen? Yes, yes. Please put it on slideshow. Yeah. Just a minute. Yeah. Is it visible, madam? Yes. Hello. Yes, yes, it's visible. So today I'm going to teach you. Daffodils, written by William Wordsworth. Now, इस कविता में जो हम अभी पढ़ेंगे, आपको पढ़ाने जाएंगे, इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ वर्ड्सवर्थ ने यह दर्शाया है कि प्रकृति, नेचर एंड इंसान, ह्यूमन का बड़ा गहरा संबंध है। हम इस कविता में देखेंगे कि प्रकृति का मनुष्य पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और वो कैसे पड़ता है, दैट वी विल सी इन दिस पोएम. नाउ सी डैफोडिल्स. डैफोडिल्स टाइटल से समझ में आ रहा है, मैंने पिक्चर डाल के रखी है. डैफोडिल्स फूल का नाम है जो कि येलो कलर के होते हैं. ओके, एंड इट इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ, a poet of romantic age of English literature. एंड डैफोडिल्स, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं येलो कलर के, ये एक फूल होते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ येलो फ्लावर commonly found in England or some other European countries. Now about the poet. William Wordsworth was born on April 17, 1770. He was one of the greatest romantic poets in the 19th century England. He belongs to the Romantic school poetry. Poets of this school are very much interested in nature, which has a great effect on their poetry. He studied at Cambridge University. He died on April 23, 1850. So this is a very brief introduction about William Wordsworth. Now, background of the poem. Now, if we see the background of the poem, Daffodils, also commonly known as I Wandered Lonely as a Cloud. It's a lyric poem by William Wordsworth. It is Wordsworth's most famous work. The poem recounts a moment on Ebb and his sister Dorothy were walking near Lake Ullswater in Grasmere, Cumbria County, England, and came across a long belt of golden daffodils. Now see, this is a picture so that you can understand. See, this is the lake, and उसके बाजू में देखो पूरे daffodils पूरे पसरे हुए हैं.
This is what the he saw when he was walking, Wordsworth. तो हम ये यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड इस तरह से है कि डैफोडिल्स पोएम जो है वो एक के नाम से प्रसिद्ध है, और वो जो दूसरे नाम अलग अलग है लेकिन लिखी है, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखी है। स्टूडेंट्स, यह पोएम जो है रियल एक्सपीरियंस, आंखों का दृश्य पर आधारित है। एंड 15 अप्रैल में 1802 में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरेथी के साथ जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें अचानक बहुत सारे डैफोडिल्स दिखते हैं येलो कलर के। वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो उनको निहारते ही रहते हैं, उनकी नजर वहां से हटती नहीं है, और उसी पल वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो डैफोडिल्स के ऊपर में एक कविता लिखेंगे। एंड इट वाज रिटन समटाइम बिटवीन 1804 एंड 1807, और वो कविता में उन्होंने इतनी अच्छे से उसकी रचना की है, खूबसूरती की, कि वो कैसे रचना की है, उसकी खूबसूरती क्या है पोएम में, वो हम इस पोएम के जरिए अभी पढ़ेंगे। Now, let me first read the poem, Daffodils by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flush upon that inward, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So this is the poem. If you see the structure of the poem, it contains 4 stanzas with 6 lines each. The rhythm is AB, AB, and CC. See, in the first stanza, I have highlighted cloud, crowd, daffodils, then, hills, daffodils, trees, breeze. Same in the second paragraph, shine, line, way, bay, glance, dance. Third, they, gay, glee, I, mood, solitude, fills, daffodils. So this is the rhyme scheme AB, and CC. Next slide. Now, what we will do is we will go stanza wise. Okay, we will study each stanza in detail. I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Let us first understand the meaning of few words in this stanza. Now see, wandered, moving aimlessly. Lonely, that means all alone. Vales means valleys. Then host means group. A host of large number of. Beneath, under. Fluttering, flapping in the air. Now, मैं दो लाइन लेती हूँ. पहले 2 लाइन जो है ये स्टेंजा की. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. Wandered मतलब का होता है, अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग देखेंगे, wander मतलब होता है इधर उधर भटकना. Lonely मतलब होता है अकेला. Cloud मतलब बादल. Floats मतलब तैरते हुए. High मतलब ऊंचाई पे. एंड वैली, वेल्स मतलब होता है वैली, दैट मीन्स घाटियां. एंड हिल्स मतलब होता है पहाड़ियां.
तो ये दो लाइन में, ये पिक्चर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, देखो अकेला पोएट खड़ा है, लोनली, एंड दैट फ्लोट्स हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। देखो यहाँ पे बता रहे हैं, द पोएट सेज दैट ही वाज वॉन्डरिंग ऑल अलोन as a cloud that floats on high over valleys and hills. Here wandering means moving aimlessly. See, he is walking, he is moving aimlessly. Means moving aimlessly, roaming around without any purpose. He compares himself and his loneliness to a cloud that floats in the sky high above the hills. ये बता रहा है कि वो अकेला भटक रहा था, इधर उधर भटक रहा था, without any purpose, without any aim. उसी तरह से वो कंपेयर कर रहा है, देखो क्लाउड्स, ये जो है यहाँ पे पहाड़ियां हैं, यहाँ पे घाटियां हैं, और इसके ऊपर से क्लाउड्स जो हैं, बादल जो हैं, एमलेसली घूमते हुए इधर से उधर चले जाते हैं। तो सेम कंडीशन जो है यहाँ पे पोएट अपनी बता रहा है। पोएट इन दो लाइन में ये कहते हैं कि एक दिन वह अकेले इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है, जिस तरह से बादल घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर अकेला घूमता रहता है, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, उसी प्रकार उस दिन वर्ड्सवर्थ भी अकेले थे और आगे बढ़े जा रहे थे। उनके दिमाग में ऐसा कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं था, ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह नहीं थी जहां उनको जाना था। तो जिस तरह से क्लाउड एमलेसली वैलीज एंड हिल्स के ऊपर से घूमते हुए चले जा रहे थे, ऐसे उस दिन पोएट जो है इधर उधर भटक रहा था, एमलेसली, विदाउट एनी पर्पस। ठीक है, ये दो लाइन में ये बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट टू लाइन्स हम देते हैं। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Now see, पहली दो लाइन में see, while roaming in, पहले मीनिंग देख लेती हूँ हिंदी में। At once मतलब अचानक, क्राउड मतलब भीड़, देखो मैंने यहाँ पे फोटो डाली है, क्राउड मतलब पीपल के लिए। ओके, आई विल एक्सप्लेन व्हाई ही हैज यूज्ड क्राउड। होस्ट मतलब हम बोल सकते हैं गुच्छा, गोल्डन मतलब सुनहरा, गोल्ड जो है येलो कलर का होता है, फूल भी येलो कलर का होता है, इसीलिए उसने यहाँ पे गोल्डन डैफोडिल्स लिखे हैं वर्ड्सवर्थ ने। सो व्हाट ही इज सेइंग, व्हाइल रोमिंग in the valley, he suddenly unexpectedly saw a crowd. वो क्या बोल रहे हैं, when all at once I saw a crowd, जब वो अकेले घूम रहे थे, पहली दो लाइन में हमने देखा वो अकेले घूम रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, उदास थे, एमलेसली घूम रहे थे, लेकिन अचानक नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट टू लाइन्स में बता रहे हैं, अचानक उनको क्या दिखता है, बहुत सारा एक क्राउड दिखता है। तो वो क्राउड तो जो था, was it a crowd of people? Daffodils, वो का क्राउड था क्या? नहीं, वो किसका क्राउड था? देखिए मैंने पिक्चर यहाँ पे डाली है, यहाँ पे क्राउड किसका है, वो डैफोडिल्स का है ना, पूरे उगे हुए डैफोडिल्स, they were everywhere, और a host of golden daffodils, host मींस गुच्छे के गुच्छे लगे हुए। तो यहाँ पे पोएट ने गोल्डन डैफोडिल्स इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसकी खूबसूरती की वो महिमा को एक्सप्रेस कर रहा है कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना। तो इन दो लाइन में पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी मन की स्थिति में जब वह घूम रहे थे, एमलेसली घूम रहे थे, दुखी घूम रहे थे, उस समय जो है वर्ड्सवर्थ की नजर एक भीड़ पर पड़ती है। वो जो भीड़ रहती है वो लोगों की भीड़ नहीं रहती है, वो भीड़ किसकी रहती है, डैफोडिल्स की रहती है, एक डैफोडिल्स के झुंड के ऊपर पड़ती है, और वो गोल्डन डैफोडिल्स को देखने लगते हैं, निहारने लगते हैं उनकी ब्यूटी, और इसीलिए उन्होंने गोल्डन डैफोडिल्स यूज किया है। नेक्स्ट टू लाइन्स, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। नाउ लेक मतलब झील, मैंने देखो फोटो डाली है, इससे आपको अच्छे से आप समझ सकेंगे, ये झील है, और झील के साइड में देखिए पूरे डैफोडिल्स बसे हुए हैं, है ना। तो झील को, लेक मतलब झील, बीनीथ मतलब नीचे, ये पेड़ है, पेड़ के नीचे, फ्लटरिंग मतलब फ्लैपिंग द विंग्स जस्ट लाइक द बर्ड्स फ्लाई, इज इट नॉट। डांसिंग मतलब नाचना, और ब्रीज मतलब हवा। Now in these two lines, beside the lake, beneath the trees,
fluttering and dancing in the breeze. So these large number of daffodils were everywhere. कहाँ कहाँ है वो? Beside the lake, lake के बाजू में, beneath the trees, trees के नीचे में, that is along the shore of the lake and below the trees. And second, तो यहाँ first line में ये बता रहा है beside the lake, beneath the trees की daffodils जो है लेक के बाजू में है और पूरे पसरे हुए हैं ना। यहाँ पे जो है ना, जिस तरह से बर्ड्स देखो हवा में ऊपर बादल में बढ़िया उड़ते हुए चले जाते हैं, उनके विंग्स इतने फ्लुएंटली ऊपर नीचे होते हैं कि बड़े आराम से वो उड़ते हुए चले जाते हैं उनके विंग्स, इसीलिए यहाँ पे उसने पर्सोनिफाई किया है। और डांसिंग जो है उसने ह्यूमन बींग से किया है। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ हमको ये बता रहे हैं कि जो बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, जो ये उगे हुए हैं झील के बाजू में, जो पूरे डैफोडिल्स उगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो खुशी के मारे में वो क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, लहरा रहे हैं हवा के झोंकों में, मस्त मस्त लहरा रहे हैं और मस्त मस्त ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रहे हैं। फ्लटरिंग मीन्स वो जो फूल है येलो कलर का, जो ये फूल है उसकी जो लीव्स हैं वो बर्ड्स जैसे विंग्स जो है खुल रही है और बंद हो रही है, isn't it? अब यहाँ पे होस्ट का पहली दो लाइन में जब हमने देखा था, जब होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स है ना, पहले पैराग्राफ में देखा था, तो होस्ट जो है, होस्ट का मतलब क्या होता है? क्राउड। लेकिन यहाँ पे host also signifies that the stretch of land was their home and they were welcoming others. Here the poet into their home and they entertaining him. तो यहाँ पे जो होस्ट का मतलब है ना, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो डैफोडिल्स का जो स्ट्रेच ऑफ लैंड है, जो पूरे मैदान में जो फैले हुए हैं, ये डैफोडिल्स का क्या है? घर है। और इस घर में वो सबको वेलकम कर रहे हैं अपने घर में। कौन? डैफोडिल्स। और यहाँ पे वो पोएट को वेलकम कर रहे हैं अपने घर में और उनको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, so in the first stanza the poet has compared himself to a solitary crowd, just like a cloud floats over hills and valley. The poet too has been walking across the countryside without any aim. Suddenly, while walking beside a lake, he saw a large number of golden daffodils that was fluttering and dancing in the breeze. They were spread out in long rows along the border of the lake and looked very happy. The flowing breeze made the daffodils flutter and it seemed as if they were dancing. See, मैंने एक पक्षी की फोटो यहाँ पे डाला, डैफोडिल्स की भी जो है फ्लटरिंग कर रहे हैं अपनी फ्लावर को। तो ये पैराग्राफ में हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को क्लाउड से कंपेयर कर रहे हैं। जिस तरह से क्लाउड्स जो है बादल में, पहाड़ियों में और घाटियों के बीच ऊपर से अकेले एमलेसली घूमते हुए चले जाते हैं, उसी तरह से उस दिन जो है पोएट भी जो है, वर्ड्सवर्थ भी है, ऐसे ही घूम रहे थे और अचानक उनको जो है खूब सारे डैफोडिल्स दिख जाते हैं, जो कि खुशी से डैफोडिल्स जो है हवा के झोंकों में मंद मंद डांस कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Now see, Milky Way means the wide band of stars that can be seen across the sky at night. Sprightly means lively, full of energy. Tossing means moving to and fro. अब हम दो लाइन लेते हैं। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Now continuous का मतलब होता है लगातार, stars का मतलब होता है तारे, शाइन का मतलब क्या होता है? चमकना, एंड ट्विंकल का मतलब क्या हो रहा है? होता है टिमटिमाना, और मिल्की वे का मतलब होता है आकाश का।
Okay, now in this paragraph, the poet begins with the comparison between daffodils along the lake and stars in the Milky Way. The poet compares the number of daffodils to the number of stars on the Milky Way. He says that the daffodils appeared as continuous and distinguishable from one another as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Now देखो ये जो फोटो मैंने डाली है, ऊपर में देखो मैंने आसमान में तारे चमक रहे हैं, ढेर सारे तारे चमक रहे हैं, और नीचे में जो मैंने फोटो डाली है वो डैफोडिल्स की डाली है। तो इस लाइन यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, वो स्टार्स के साथ में डैफोडिल्स को कंपेयर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं आसमान में जितने स्टार्स हैं हम उनको गिन नहीं सकते हैं, उतने ही डैफोडिल्स यहाँ पे लेक के किनारे में पूरे पसरे हुए हैं। नो ये कंपैरिजन में देखो देयर इज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट। पोएट जो है उसका स्टेट ऑफ माइंड फर्स्ट स्टैंजा में कैसा था, ही वाज लोनली, एंड देन अचानक उसको क्या दिखते हैं, डैफोडिल्स दिखते हैं, बहुत सारे डैफोडिल्स दिखते हैं। अब वो सेकेंड पैराग्राफ में वो डैफोडिल्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टार्स से। Is it not? Milky Way. See, there is a difference between shine and twinkle. Shine का मतलब क्या होता है, ब्राइट लाइट होती है, चमकीली लाइट रहती है, रोशनी रहती है। एंड ट्विंकल का मतलब क्या होता है, लाइट दैट चेंजेस कॉन्स्टेंटली फ्रॉम ब्राइट टू फेड। पहले तेज लाइट होगी, फिर धीरे धीरे फेड होगी, देन अगेन तेज हो, तो दैट इज नोन एज ट्विंकल। इज इट नॉट? तो वो कॉन्स्टेंटली जो है ट्विंकल कर रहे थे, कहाँ पे, आकाश में, तारे। तो वही वो बता रहे हैं कि स्टार्स में जिस तरह से आकाश जो है, तारे चमक रहे थे, अपना एक सिम्फोनी, अपना एक रिदम में झूम रहे थे, उसी तरह से वो बता रहा है डैफोडिल्स भी लेक के बाजू में ट्विंकल कर रहे थे। ओके, ये दो लाइन में अगर हम हिंदी में मैं इसका अनुवाद करूं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि स्टेंजा में इस दो लाइन में पोएट वर्ड्सवर्थ जो है डैफोडिल्स को कंपेयर कर रहे हैं स्टार्स से। डैफोडिल्स अनगिनत संख्या में झील के किनारे उगे हुए हैं। ओके, वर्ड्सवर्थ कहते हैं जिस तरह आकाश में अनगिनत तारे होते हैं एंड इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट, है ना, उनको तो हम एक तारे को अलग नहीं कर सकते, अलग से नहीं देख सकते हैं, एक तारे को अलग करना नामुमकिन है। उसी तरह वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि डैफोडिल्स भी इतने पास पास हैं कि एक दूसरे से उनको अलग करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ओके, एंड हम उनको नहीं देख सकते। डैफोडिल्स का कंपैरिजन ये भी बताता है कि वे इतने सुंदर लग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने तारों भरी रात से डैफोडिल्स का कंपैरिजन किया है। ये दो लाइन है, ठीक है। They stressed a never-ending line along the margin of a bay. Now they stressed मतलब क्या होता है, विस्तार। ओके, नेवर एंडिंग लाइन मतलब जो कभी खत्म नहीं, नेवर एंडिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं हो। उसके बाद में along the margin of a bay, मार्जिन मतलब क्या होता है, along the margin of a bay means border। ओके, यहाँ पे देखो दे स्टेज इन, पिक्चर से आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैंने पिक्चर्स डाली हैं और उसके ऊपर में लाइन लिखी है, दे स्टेज इन नेवर एंडिंग लाइन। आप ये देखिए डैफोडिल्स यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, है ना। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे मतलब झील के किनारे किनारे पूरे ऐसे डैफोडिल्स पसरे हुए हैं। So according to the poet, the daffodils which cover the shore of the lake seemed to be unending like the stars in the sky. And like them, the stars of Milky Way, they were too twinkling. तो पहले उसमें हमने देखो कंपेयर किया था कि किस तरह से तारे जितने आसमान में हैं उतने ही हमारे डैफोडिल्स हैं लेक के बाजू में, और ये वो भी ट्विंकल कर रहे हैं स्टार्स, और डैफोडिल्स भी ट्विंकल कर रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो poet says that the daffodils stretch in never ending line along the, और poet बता रहा है वो लाइन, वो जो रो है डैफोडिल्स की इतनी लंबी है कि जहां तक उनकी नजरें जा रही हैं वहां तक उनको डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स दिख रहे हैं, इतना सुंदर नजारा है। along the margin, पूरे झील के किनारे किनारे जहां तक उनकी नजरें जा रही हैं वहां तक डैफोडिल्स पूरे पसरे हुए हैं।
तो इन दो लाइन में पोएट, अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें, दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, इन दो लाइन में पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि डैफोडिल्स के फूल इतने सारे हैं, जहां देखो वहां डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स नजर आ रहे हैं, मानो इन फूलों की कतार कभी खत्म ही नहीं होगी। वर्dsworth कह रहे हैं कि उनकी नजर जितनी दूर जा रही है उतनी दूर तक वो डैफोडिल्स के फूलों को देख रहे हैं। डैफोडिल्स पूरे झील के किनारे में फैले हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ द सेकंड स्टेंजा। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. 10,000 saw I at a glance. 10,000 मतलब 10,000, ग्लैंस मतलब झलक, टॉसिंग मतलब मैंने बताया था टू एंड फ्रो, हेड्स मतलब सर, स्प्राइटली मतलब प्रसन्नता, आनंदपूर्व, है ना, स्प्राइटली आनंदपूर्व से भरा हुआ वातावरण। तो in these two lines poet wants to say that in just one glance he could see 10,000 daffodils dancing enthusiastically and tossing their heads together in enjoyment. यहाँ पे पोइट हमको बता रहे हैं कि एक झलक अगर उनकी पड़ रही है, एक नजर अगर उनकी पड़ रही है डैफोडिल्स की, तो वो एक साथ कितने देख रहे हैं? कम से कम 10,000 उनको एक साथ दिख रहे हैं। ओके, एंड टॉसिंग देयर हेड्स टुगेदर इन एंजॉयमेंट। टॉसिंग मीन्स देखो है, ये जो हेड है ना, यहाँ पे देखो आगे मैं बताती हूँ। हियर इट मीन्स द पोएट सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स देयर टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। द वर्ड हेड हियर रेफर्स टू द टॉप फ्लावर पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट मीन्स इसको हेड बोल रहा है, ये जो टॉप पार्ट है ना फ्लावर का, इसको वो हेड बोल रहा है। ओके, एंड स्प्राइटली डांस मीन्स लाइवली, जुबिलियंटली, very happily. The daffodils were thus moving their heads in a rhythm which looked like amazing and seemed to the poet as they were dancing. तो ये दो लाइन में पोएट बता रहा है कि एक झलक में कम से कम वो कितने डैफोडिल्स देख लेता है? कम से कम 10,000 दिखते हैं उसको। एंड दे वर टॉसिंग देयर हेड्स, हेड्स मतलब ये जो फूल का ऊपर हिस्सा है, टॉसिंग मीन्स झूम रहे थे हवा के झोंके में, ऐसा लग रहा था कि वो खुशी से डांस कर रहे हैं। तो इन दो लाइन में पोएट कहते हैं 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. वर्dsworth कहते हैं कि जब उनकी नजर एक झलक डैफोडिल्स पर पड़ती है तो उन्हें एक साथ 10,000 डैफोडिल्स दिखाई दे। सभी डैफोडिल्स को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मंद हवा में, मंद पवन में, है ना, धीरे धीरे जो हवा चल रही है वह खुशी से लहरा रहे हैं। वर्dsworth कहते हैं ऐसा लग रहा था मानो वे सब डांस कर रहे होंगे खुशी से। ओके, नाउ अगर हम समराइज करते हैं सेकेंड स्टेंजा में, तो द फ्लावर्स आर कंपेयर टू द स्टार्स। यहाँ पे जो सेकेंड स्टेंजा में है, फ्लावर्स को कंपेयर किया गया है किससे? स्टार्स से। जस्ट लाइक स्टार्स द डैफोडिल्स वर शाइनिंग, जिस तरह से स्टार्स शाइन कर रहे हैं ऐसी डैफोडिल्स शाइन कर रहे हैं, गोल्डन इन कलर, एंड वे आर ट्विंकलिंग एंड फ्लटरिंग इन द ब्रीज। ट्विंकल एंड फ्लटिंग मीन्स किस तरह से वो शाइन कर रहे हैं? मंद मंद हवा के झोंके में लहरा के वो डांस कर रहे हैं, तो एकदम ट्विंकलिंग वे फ्लटिंग इन द ब्रीज। द पोएट सेज डैफोडिल्स वर स्ट्रेस्ड इन, और पोएट हमको आगे ये भी बताते हैं कि उनकी जहां तक नजर जाती है, स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन एंड दे वर विजिबल एज फार एज ही कुड सी अलोंग द शोर ऑफ अ बे। तो वो जहां तक उनकी नजरें जाती हैं वहां तक पूरे शोर के किनारे में उनको क्या दिख रहे हैं? डैफोडिल्स, डैफोडिल्स दिख रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। He further says that the daffodils were tossing their heads as if they were dancing in happiness, और ऐसा लग रहा था डैफोडिल्स जो है हवा के झोंकों में लहर मस्ती में झूम रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो डांस कर रहे होंगे खुशी के मारे। Now, let's move to the third stanza. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Now, outdid मतलब होता है do better than.
स्पार्कलिंग मतलब होता है सेंडिंग आउट फ्लैशेस ऑफ लाइट। ग्ली मतलब होता है फीलिंग ऑफ जॉय कॉज्ड बाय सक्सेस। जुबिलेंट मतलब होता है चीयरफुल। ओके, हम दो दो लाइन लेते हैं। देखिए इसमें भी मैंने पिक्चर डाल के रखी है सो दैट इट विल मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. पहली दो लाइन थर्ड स्टैंडर्ड। वेव्स मतलब क्या होता है, पहले हम हिंदी में इनका मीनिंग देख लेते हैं। वेव्स मतलब होता है लहरें, है ना। उसके बाद में आउटडिड, आउटडिड मतलब होता है बेहतर। स्पार्कलिंग मतलब होता है चमकती हुई, और ग्ली मतलब होता है उल्लास, खुशी। तो in this stanza the poet brings the waves waving in the lake. poet जो है, ये जो waves है ना, जो झील में पानी में जो पानी है, वो जो waves होती हैं, लहरें उठती हैं गिरती हैं, उसको हम waves कहते हैं, लहरों। तो ये जो waves को अब वो डैफोडिल्स के साथ में लेके आए हैं, और वो क्या बता रहे हैं, along with the daffodils even the waves that were just beside them were dancing. वो हमको ये बता रहे हैं जो डैफोडिल्स हैं ये तो डांस कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में जो वेव्स हैं वो भी ऐसा लग रहा है खुशी के मारे डांस कर रही हैं। Since the sunshine fell on the water, the waves were sparkling. जिस तरह से देखो, जब सूरज की किरणें पानी के ऊपर पड़ती हैं तो वो चमकती हैं, है ना। तो उसी तरह से वेव्स जो ऊपर नीचे हो रही हैं खुशी के मारे वो चमक रही हैं, because sparkling with happiness. The line means that there were waves too seem to be dancing in the lake, but the joyful dance of the daffodils was far better than theirs. तो यहाँ पे वो बता रहा है वेव्स डांस तो कर रही है डैफोडिल्स के साथ में, लेकिन वेव्स जो हैं ज्यादा अच्छा डांस कर रही हैं लहरों के कंपैरिजन में। इसका मतलब वेव्स जो हैं लहरों से ज्यादा खुश हैं। ये दो लाइन का अनुवाद अगर हम हिंदी में देखते हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। इन दो लाइन में वर्ड्सवर्थ यह बता रहे हैं कि उस दिन लेक के आसपास का वातावरण ऐसा लग रहा था मानो खुशी में डूबा हुआ हो। वर्ड्सवर्थ यह बताते हैं कि झील में जो उठती गिरती जो लहरें उन्हें ऐसा प्रतीक हो रही थी जैसे कि वे चमक रही हैं। साथ ही ऐसा लग रहा था मानो वह एक तरह की खुशी में डांस कर रही हूँ, चमक भी रही है, डांस भी कर रही हूँ। तो डैफोडिल्स के साथ साथ लहरें नाच तो रही थी, लेकिन वो बता रहे हैं नाच तो रही थी लेकिन लहरें इतना अच्छा नहीं डांस कर रही थी जितना कि डैफोडिल्स डांस कर रहे थे, जितने कि फूल डांस कर रहे थे। फूल लहरों से ज्यादा खुश थे। इसका मतलब ये हो गया कि फूल जो है डैफोडिल्स आर मोर हैप्पी देन द वेव्स, इज इट नॉट। फूलों को जो डांस उसने लहरों के डांस से बेहतरीन बताया है ना। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डैफोडिल्स का जो नजारा है, जो झूम रहे हैं हवा के मंद मंद हवा के झोंकों में, उसमें वो डांस कर रहे हैं, तो उनका डांस जो है वेव से ज्यादा बेहतरीन है। समझ में आया ये दो लाइन, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन द glee. Now next two lines. A poet could not but be gay in such a jocund company. Now see, gay मतलब होता है प्रसन्न, jocund मतलब होता है खुश, company मतलब होता है संगत। Now see, in these two lines, see, poets are very sensitive, they are very highly sensitive to beauty and emotions. पोइट जो है ना, अगर उसको कोई अच्छा खुशहाली नजारा दिखता है, कुछ इस तरह का सीन दिखता है, तो वो अपनी कविताओं की कल्पना में खो जाता है। एंड फॉर अ पोइट लाइक वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ तो नेचर का पोइट है। For himself, the joyful company was an ultimate source of pleasure and joy. वो बता रहा है डैफोडिल्स जो उसने हकीकत में जो नजारा देखा, जो डैफोडिल्स का वो शो देख रहा है, वो जो शो है वो ये बता रहा है वो उसको इतना खुश कर देता है he could not stop himself from being happy. शुरू में अपन ने देखा तो कितना उदास घूम रहा था, लेकिन डैफोडिल्स को देख के वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। और उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था अकेला रहना या दुखी रहना। अब जो है वो किसकी कंपनी एंजॉय कर रहा है, डैफोडिल्स की कंपनी को एंजॉय कर रहा है।
और डैफोडिल्स के साथ में बहुत खुश है। यहाँ पे पोएट हमको ये भी बताना चाहते हैं कि पोएट्स को इस तरह का नजारा जो वर्dsworth ने देखा, ये उनका सिर्फ स्वप्न ही रहता है, लेकिन यहाँ पे तो वर्dsworth ने हकीकत में ये चीज देख ली। तो इसीलिए पोएट बोला है, पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जो, पोएट जो है उदास रह ही नहीं सकता था, उसने ये नजारे देख के इतना खुश हो गया कि वो जो है डैफोडिल्स की कंपनी को एंजॉय करने लगा। नेक्स्ट टू लाइंस, आई गेज्ड एंड गेज्ड but little thought what wealth the show to me had brought. Now see, पोइट हमको यहाँ पे बता रहे हैं ये दो लाइन में, आई गेज्ड एंड गेज्ड, गेज्ड एंड गेज्ड पहले मैं हिंदी में मीनिंग बताती हूँ। गेज्ड एंड गेज्ड का मतलब होता है टकटकी लगाए देखना, है ना, बिना आंखी पलके को झपके हुए कंटिन्यूअस देखना। ओके, हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं टकटकी लगा के देखना। और थॉट मतलब सोचना, वेल्थ मतलब दौलत होता है ना, पैसा, लेकिन यहाँ पे वेल्थ जो है ना वो हैप्पीनेस के लिए कहा गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, द पोएट स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम गेजिंग और जस्ट लुकिंग फिक्सिडली एट द डैफोडिल्स। पोएट ने क्या किया, जब ये डैफोडिल्स का नजारा देखा ना तो वो कंटिन्यूअस वहां पे खड़ा रहा और उनको टकटकी लगाए डैफोडिल्स के नजारा को देखता रहा, वो वहां से अपनी आंखों को हटाना ही नहीं चाहता था। एब्सॉर्बिंग द ब्यूटी एंड हैप्पीनेस एट द पॉइंट ही डिड नॉट इवन रियलाइज व्हाट रिचेस ही हैज एक्चुअली गॉट फ्रॉम द शो पुट अप बाय द डैफोडिल्स। वो बता रहे हैं कि वो टकटकी लगा के वो नजारा जो देख रहे थे डैफोडिल्स का, तो वो पूरा वो जो नजारा है, वो जो पूरी सुंदरता, वो जो पूरी ब्यूटी, वो जो पूरी खुशहाल जो उनको अंदर से लग रहा था, उसको पूरा एब्सॉर्ब करना चाहते थे, है ना। और एब्सॉर्ब करने के बाद उनको उस समय उस मोमेंट में ये रियलाइज नहीं हुआ कि आगे फ्यूचर में वो उनके लिए कितना लाभदायक रहेगा, ये उनको उस समय रियलाइज नहीं हुआ। In other words, we can say the poet kept looking on the daffodils and their dance. तो पोएट जो है वो नजारे में से अपनी नजरें हटाने ही नहीं चाहते थे, उनको लग रहा था कि मेरी नजरें हट गई तो फिर मैं ये इतना खूबसूरत वातावरण मुझे कब मिलेगा देखने के लिए, डैफोडिल्स का जो शो वो देख रहे हैं। तो वो उनके डैफोडिल्स को निहार रहे थे और उनके डांस को निहार रहे थे। However, he could not fully appreciate the scenery before him. देखो, आंखें जो है, अगर हम बोलेंगे कहीं घूम के आ जाते हैं और हम बोलते हैं अरे वो कैसा है उसको बताओ करो, तुम डिस्क्राइब करो, कोई भी हिल स्टेशन को तुम घूम के आए या कोई फ्लावर शो देख के आए, तो आंखें जो है उसकी जबान नहीं होती, वो कई चीजें ऐसी होती है हमको देखते कुछ है लेकिन हम उसका जब डिस्क्राइब करते हैं तो आंखें पूरी तरह से बोल नहीं पाती हैं जो हम हकीकत में देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्लाउड नॉट फुल्ली अप्रिशिएट द वेल्थ हियर मींस हैप्पीनेस, यहाँ पे जो वेल्थ वर्ड यूज किया है ना वो हैप्पीनेस के लिए यूज किया है। और रोमांटिक पोएट्स जो रहते हैं, फॉर द रोमांटिक्स नेचर एंड इट्स ब्यूटी वाज द अल्टीमेट वेल्थ। जो नेचर पोएट के जो पोएट्स रहते हैं ना, अगर उनको इस तरह का वातावरण दिख जाता है हकीकत में, तो वो उनके लिए जन्नत जैसे हो जाती है। ही कुड नॉट, और वो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेके नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो वहां पे कंटिन्यूअस खड़े, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। अगर ये दो लाइन का हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो वर्ड्सवर्थ हमको बता रहे हैं कि ये जो डैफोडिल्स को जो वो देखे ही जा रहे थे, वो कह रहे थे कि ये नजारा इतना बेहतरीन था, माहौल इतना सुंदर था, लहरें डांस कर रही थी, है ना। सॉरी, लेकिन एक मिनट, इसको पीछे पीछे कैसे होगा, हाँ। तो डैफोडिल्स को देखे जा रहे थे। वर्dsworth कहते हैं कि डैफोडिल्स के डांस को देखकर वह इतने ज्यादा मदहोश हो गए थे, इतने डूब गए थे, इतने मग्न हो गए थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि यह सुंदर दृश्य उन्हें भविष्य में कितना सुखद और प्रसन्नता पूर्वक यादें दे देगा। डैफोडिल्स फूल जो हैं वो वर्dsworth के लिए खुशी का खजाना लेके आए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे वेल्थ वर्ड को यूज किया है। ओके, now if we see the whole summary of the stanza, the poet says that there were waves that were dancing in the lake, but
were no match for waves of daffodils rippling in the breeze. तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में पोएट जो है वेव्स को डैफोडिल्स के साथ में लेके आए हैं और वो ये बता रहे हैं वेव्स डांस तो कर रही हैं डैफोडिल्स के साथ में, लेकिन डैफोडिल्स का डांस जो है ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतरीन है. Joyful dance of daffodils was way better than theirs. The joyful company of daffodils was the ultimate source of pleasure for the poet and he can feel nothing happiness in them. और poet के लिए भी, वर्ड्सवर्थ के लिए भी daffodils की कंपनी में वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे उनकी कंपनी में. ऑल्दो ही क्या, और इसीलिए वो टकटकी लगा के जो है डैफोडिल्स को निहारते ही जा रहे थे. वो अपनी नजरें वहां से नहीं हटाना चाहते थे, वो पूरा खूबसूरत नजारा अपने साथ में लेके जाना चाहते थे, इसलिए वो वहां से अपनी नजरें नहीं हटा रहे थे. Now come to the fourth stanza. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flush that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Now see, oft मतलब क्या होता है? Often. Couch मतलब bed. Vacant मतलब empty. Pensive मतलब sad, है ना? Thoughtful. Inward eye मतलब mind's eye, imagination. Bliss मतलब happiness. And solitude मतलब alone, being alone. Now, first two lines, पहली दो लाइन हम लेते हैं. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive. Oft मतलब अक्सर. ओके, काउच मतलब देखो मैंने यहाँ पे फोटो डाली है, पिक्चर डाली है. काउच मीन्स अ टाइप ऑफ सोफा कम बेड, है ना? वी कैन से दीवान ऑल्सो, वी कैन से ऐसा. लाई मतलब लेटा, देखो वो लेटा हुआ है, दिस इज द पोजिशन. ओके, एंड वैकेट मतलब खाली समय में. पेंसिव मतलब थोड़ा सा चिंताग्रस्त, है ना? उसको हम पेंसिव बोलते हैं, पेंसिव मूड, चिंताग्रस्त मूड में. तो ये स्टेंजा में सी इन द लास्ट स्टेंजा रिवील्स द एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द daffodils, which the poet had not fathomed when he was actually looking at them in the countryside. देखो, जब पोएट ये नजारा देख रहा था ना डैफोडिल्स का, तो उस समय उसको ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि आगे भविष्य में डैफोडिल्स वाला शो उसके इतने उसको हैप्पीनेस देगा, ये उसने कभी रियलाइज नहीं किया. लेकिन जब कभी वो बता रहा है अकेला लेटता है काउच पे खाली समय में, जब वो बोर होते रहते हैं या जब वो कभी चिंतित रहते हैं या कभी सैड रहते हैं, तो ऐसे समय में क्या होता है? they flush upon they flush upon that inward eye, which is the bliss of solitude. Now see, ऐसे समय में जब वो अकेले अपने काउच पे लेटे रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, बोर होते रहते हैं, ऐसे समय में क्या होता है? The daffodils flush, which means appeared suddenly and brightly inward eye, which means the mind's eye or memory or image. देखो मैंने पिक्चर डाली है. आंखों के अंदर जब वो कभी भी अकेले ऐसे खाली समय में रहते हैं, तो उनकी आंखों के सामने में वही डैफोडिल्स वाला सीन याद आ जाता है. डैफोडिल्स का शो, पूरा वातावरण उनको सामने उनकी आंखों के आ जाता है ना? यहाँ पे पोएट ने ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पे उसने क्यों बताया है विच इज अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड? देखो, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड जो है ना, बहुत अलग है. सॉलिट्यूड और लोनली में दोनों में फर्क है. When you are lonely, you crave for someone's company. जब तुम अकेले रहते हो ना, तो कई बार तुमको ऐसा लगता है कोई कंपनी चाहिए. But solitude is when you are by yourself and happy with your own company. लेकिन solitude में कैसा होता है ना, तुम अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो, तुमको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चाहिए, तुम अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो अनडिस्टर्ब. द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स द प्योर अनअडल्टेड काम हैप्पीनेस, अनडिस्टर्ब.
that the poet experiences thinking of the daffodils all by himself, undisturbed by anyone else. तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि एकदम से फ्लैश आता है उनके पास, एकदम से वही डैफोडिल्स वाला नजारा वो उनकी आंखों के सामने में आ जाता है, जिसको वो अकेले बहुत सुकून से एंजॉय करते हैं। तो ये 2 लाइन में अगर हम इसको हिंदी में देखते हैं, तो पहली 2 लाइन में तो हमको जब फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड में, जब वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब भी वह सोफा पर बैठे होते हैं या लेटे रहते हैं, उनका माइंड खाली होता है, या फिर जब वह बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं या बहुत चिंतित रहते हैं, तो उस समय तब क्या होता है, उन्हें वह उस मंजर को याद करते हैं। कौन से मंजर को याद करते हैं? डैफोडिल्स, उस लेक के नजारे को याद करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, है ना। वह फूलों का नजारा उनकी आंखों के सामने आ जाता है और उनकी उदासीनता को क्या कर देता है, खत्म हो जाती है। उनका अकेलापन दूर हो जाता है। जैसे कि हम कई बार जब खाली बैठे रहते हैं और चिंतित होते हैं, तो हमारी जिंदगी के कुछ हसीन पल ऐसे होते हैं जो हमें अचानक याद आ जाते हैं, और जब हमें वो हसीन पल याद आते हैं तो हमारे चेहरे में क्या होती है, मुस्कुराहट आ जाती है। और जब हमारे चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है तो हमारा मूड जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो सेम थिंग यहाँ पे भी जब पोइट जो है अकेले वर्ड्सवर्थ लेटे रहते हैं काउच पे, चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, बोर होते हैं, तो उनके आंखों के सामने वही डैफोडिल्स वाला सीन जो एक समय में उन्होंने देखा था वो आ जाता है, और वो उनको उनके अकेलेपन को, उनके दुखीपन, जो भी वो दुख रहते हैं उसको पूरा वो दूर कर देता है, वो खुश हो जाते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विथ द डैफोडिल्स। सो एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, प्लेजर मतलब खुशी, फिल्स मतलब भर, पूरा भर जाता है, घड़ा मटका जैसा भर जाता है ना, खुशी से भर भर जाना। डांसेस मतलब डांस करना, नाचना। तो व्हेन द पोएट सीज द डैफोडिल्स इन द माइंड्स आई, तो जब डैफोडिल्स की आंखों के सामने में फ्लश करते हैं तो उनका हार्ट क्या हो जाता है, is filled with pleasure remembering the dance of the daffodils. His heart also dances with them in joy. तो उनको जब वो डैफोडिल्स वाला शो उनकी आंखों के सामने में आता है तो उनको डैफोडिल्स डांस करते हुए नजर आने लगते हैं, और उनका दिल भी जो है खुशी से डांस करने को होने लगता है। Thus, the memory of the daffodils becomes his companion in his solitude, and taking away all his sorrows and boredom, make his spirit dance with them. So, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ये 2 लाइन को अगर हम हिंदी में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर भी यह बात बताते हैं कि वर्ड्सवर्थ उन डैफोडिल्स को याद करके उनका हृदय खुशी से भर जाता है ना। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, डैफोडिल्स को याद करके उनका दिल जो है, उनका हार्ट जो है, उनका जो हृदय है, खुशी से भर जाता है, और वह भी डैफोडिल्स की कंपनी को एंजॉय करते हैं, और वो डैफोडिल्स की कंपनी को एंजॉय करते हैं। कैसे एंजॉय करते हैं? सेकेंड लाइन में देखो, लास्ट लाइन में लिखा है एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। कैसे एंजॉय करते हैं? उनका मन भी नाचने को, डांस करने को होता है। ओके, तो हम ये देखते हैं अगर फाइनल स्टेंजा में, द पोएट सेज दैट व्हेनेवर ही लाइज ऑन हिज काउच एंड इन लो स्पिरिट्स और व्हेन ही इज sorrowful, the sight of the daffodils flushes in the mind and becomes the source of joy in his solitude. The memory of daffodils takes away all his sorrows and boredom, thus making him happy, and it seems to him as if his heart is dancing with the daffodils. तो लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि जब वो अपने लो स्पिरिट में काउच में लेटे रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो उस समय डैफोडिल्स का ही शो उनकी आंखों के सामने आ जाता है। डैफोडिल्स उनकी आंखों में बिल्कुल फ्लैश करते हैं, और उनका जो माइंड है, उनका जो मन है, उनका जो दिल है, वो खुशी से झूम उठता है और उनका अकेलापन दूर हो जाता है। तो जैसे ही वो जो मेमोरी उनको याद आती है डैफोडिल्स की, तो उनका पूरा दुख, उनका पूरा अकेलापन, उनका पूरा जो वो बोर हो रहे थे, वो पूरा लेके चला जाता है। और पोएट जो है
वर्ड्सवर्थ भी जो है डैफोडिल्स के साथ में डांस करने का उनका मन करता है. Now see, this is the poem Daffodils which just now I have taught you. तो it is in 4 stanzas. तो पहले स्टेंजा में हम देखते हैं कि पोएट जो है किस तरह से अकेले घूम रहे थे, उसी तरह से अकेले घूम रहे थे जिस तरह से क्लाउड जो है घाटियों पहाड़ियों में अकेले घूमते रहते हैं, है ना. और फिर अचानक उनको क्या दिखते हैं, बहुत सारे डैफोडिल्स दिखते हैं. कौन से कलर के डैफोडिल्स बोल रहे हैं, गोल्डन, क्योंकि डैफोडिल्स जो है वो येलो कलर के होते हैं, इसीलिए उन्होंने उनकी खूबसूरती की महिमा जो है येलो से की है, बिकॉज गोल्ड इज ऑल्सो येलो. और वो कहाँ पे है, वो पूरे झील के किनारे में है, पूरे झील के किनारे में पसरे हुए हैं. और वो क्या कर रहे हैं, मंद मंद हवा में डांस कर रहे हैं. ओके, सेकेंड पैराग्राफ में हम देखते हैं कि कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, उसमें वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टार से. जिस तरह से आसमान में कंटिन्यूसली स्टार्स जो हैं ट्विंकल करते रहते हैं, शाइन करते रहते हैं, उसी तरह से डैफोडिल्स भी जो है लेक के किनारे खुशी से डांस कर रहे थे, चमकते हुए खुशी में दिख रहे थे, है ना. टॉसिंग देयर हेड्स, मतलब उनका जो फूल है वो मस्त लहरा रहे थे हवा के झोंके में. थर्ड पैराग्राफ में वेव्स से कंपेयर किया गया डैफोडिल्स को. वेव्स जो हैं ऊपर नीचे डांस करती हुई लग रही थी, खुशी थी, चमक रही थी, लेकिन डैफोडिल्स का डांस जो है वेव से ज्यादा अच्छा था, मतलब डैफोडिल्स जो है वेव से ज्यादा खुश थे. और लास्ट स्टेंजा में हम देखते हैं कि डैफोडिल्स का जो ये डांस रहता है, ये जो सीन रहता है, ये जो वातावरण रहता है, ये वर्ड्सवर्थ को इतना अच्छा लगता है कि वो वहां से अपनी नजरें ही नहीं हटाना चाहते हैं, और वो इसीलिए उसको टकटकी लगा के देखते रहते हैं. और उनको उस समय रियलाइज नहीं होता है कि ये जो डैफोडिल्स वाला शो है ना, उनके आगे जीवन में उनको कितनी प्रसन्नता लेके आएगा, ये उनको अनुमान ही नहीं रहता है. तो वो क्या करते हैं, जब लास्ट पैराग्राफ में पोइट ने हमको ये बताया कि जब कभी वो अकेले खाली लेटे बैठे रहते हैं, उस समय बोर होते रहते हैं या सैड रहते हैं, तो अचानक उनको वही डैफोडिल्स वाला जो शो है वो उनकी आंखों के सामने में आ जाता है, जो हकीकत में उन्होंने देखा था. और उनका मन भी जो है खुशी से झूम उठता है, और उनका हृदय जो है डांस करने के लिए होता है. Okay, so this is the poem, and the summary of the poem I have given the 7 points. It will help you. The poet is talking, the poet is taking a walk all alone in the countryside. Poet जो है शुरू में हमने देखा countryside में walk कर रहे थे. Suddenly he comes upon a stretch of land covered with daffodils. अचानक जो है उनको एक लैंड दिखता है जिसमें पूरे डैफोडिल्स हैं लेक के किनारे में. He stands there observing and absorbing the beauty of the flowers. और वो वहां पे खड़े होके ऑब्जर्व करते रहते हैं और एब्सॉर्व करते रहते हैं, देखते भी हैं और पूरा अपने अंदर भी लेना चाहते हैं ब्यूटी ऑफ द फ्लावर. He loses himself in gaiety and finds himself feeling very joyful. और वो बहुत अपने को उनके बीच में बहुत खुश पाते हैं, डैफोडिल्स के बीच में उनका अकेलापन दूर हो जाता है. ओके, एट द पॉइंट ही डज नॉट, उस समय डज नॉट रियलाइज हाउ मच द ब्यूटीफुल साइट हैज बेनिफिटेड हिम. सी एट दैट टाइम उनको ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये जो साइट वो देख रहे हैं उनके भविष्य में कितना उनको बेनिफिट रहेगा, कितना लाभदायक होगा, ये उस समय उनको रियलाइज ही नहीं हुआ. But later, when he is lying on his couch, feeling lonely or anxious, he simply remembers the daffodils. लेकिन जब कभी वो अकेले लेटते हैं, बैठते हैं, तो उस समय जो है उनको वो डैफोडिल्स का जो है नजारा याद आता है. और जैसे ही वो डैफोडिल्स का नजारा उनको याद आता है, तो वो भी खुशी के मारे क्या होते हैं, he immediately feels very happy and enjoy the company of daffodils in his solitude. और अकेले जब भी वो रहते हैं तो कंपनी में डैफोडिल्स के एंजॉय करते हैं. तो ये 7 पॉइंट्स मैंने तुम लोगों को दिए हैं, शायद ये तुमको हेल्प करें तुम्हारे नोट्स में या तुम्हारे एमसीक्यूज में, तो इट विल हेल्प यू. ओके, सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. और हमने इस पोएम में शुरू में मैंने बताया था कि नेचर एंड ह्यूमन का रिलेशन किस तरह से होता है ना. तो हमने इस पोएम में यह देखा कि वर्ड्सवर्थ ने बड़ी खूबसूरती से क्या दर्शाया है, प्रकृति को और इंसान.
का गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है ना। हमने इस कविता में देखा कि जब वर्ड्सवर्थ अकेले इधर उधर उदास घूम रहे थे, तब डैफोडिल्स का नजारा ही उन्हें अत्यंत खुशी कर देते हैं। जो अत्यंत उनको खुशी देता है, उनका अकेलेपन को कौन दूर करता है? डैफोडिल्स के नजारे ही उनको दूर करते हैं। ग्रुप ऑफ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स, है ना। इस बात पर वो जोर देते हैं कि यह दृश्य जब उन्होंने उन सुनहरे डैफोडिल्स को हवा में झूमते हुए देखा था, उनके मन और मस्तिष्क में हमेशा के लिए अंकित हो गया था। वो जो नजारा उन्होंने देखा था ना डैफोडिल्स का, झील के किनारे लहरा रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं, गा रहे हैं, तो वो उनके मन में हमेशा के लिए परमानेंट फीड हो गया था। ओके, इन योर लैंग्वेज। एंड जब भी भविष्य में वह इस दृश्य को याद करते हैं, और कभी फ्यूचर में कभी भी जब वो इस दृश्य को याद करते हैं, तो उनका हृदय, उनका हार्ट जो है खुशी से भर जाता है। डैफोडिल्स का शो उन्हें अत्यंत सुकून और खुशी प्रदान करता है। Okay, so I hope students you have enjoyed and you have understood the poem. Over to Manju madam. Hello. 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 Thank you, Renu ma'am. Yeah. Oh, you are there? Okay, wait. Let me first, I would also like to thank to the organizers for giving me an opportunity to address our students. Okay, thank you, thank you. Thank you, Renu ma'am. That was really a fantastic explanation of the poem, and you dealt with each and every aspect in detail. And children loved it because it was in Hindi also, and you made it so interesting, ma'am. Thank you so much. Thank you. Okay. We'll meet, dear students, we'll meet tomorrow with another poem and with another expert in English. Till then, happy learning. Goodbye. Thank you, ma'am. Thank you.